গুড মর্নিং বন্ধুরা। এখানে মা পুজো দিচ্ছে, তো আর কি প্রণাম করছিল বাবাকে, তো সেই কারণে আমি আর এই ঘরে কথা বলছি না। তো চলো পেছনের ঘরে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো মা ওখানে ঠাকুর দেখাচ্ছে বলে আমি আর কথা বললাম না। যাই হোক, নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মন যা চায় পরিবার। কয়েকদিন ধরে তো আর ভিডিও পাচ্ছ না, জানি। আমি নিজেও এডিটিং করে পোস্ট করতে পারছি না, তারপর ভিডিও করছিও না। পরীক্ষা চলে এসেছে, আজকে কত তারিখ বলে তো 24 তারিখ, আজকে যাকে ভিডিওটা করছি। তো টাইটেল থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আর কি, সেন্টার যে মাউন্ট আবু অর্থাৎ রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে, ওখান থেকে একজন ভাইয়া আসছে, কবির ভাইয়া। তো উনি গতকালকে এসেছে, মা গিয়েছিল, আমার কালকে পড়া ছিল বলে আমি যেতে পারিনি। তো আজকে মা সকালেও গিয়েছিল, মুরলি পড়েছে, তারপরে মেডিটেশন মুরলি পড়েছে। আজকে ভাট্টি হবে, তো যোগে বসবে, তো সেই কারণে আজকে একবার আমি যাব। তো সেই কারণে এখন বাজে হচ্ছে 11:15, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন স্নান করে মা তোরকে স্নান করে পুজো দিল, তখন আমি স্নান করে রেডি হয়ে বেরোবো। তো যতটুকু পারবো তোমাদের সাথে একটা শেয়ার করবো, অ্যাটলিস্ট ওনাকে আর কি দেখানোর চেষ্টা করবো। তো কবির ভাইয়া যেখানে আর কি এসেছে, উনি হচ্ছে আমাদের এখানকার কাউন্সিলর, অর্থাৎ শ্রীলা ম্যাডামের বাড়িতে আর কি উনি এসছে। ওখানে বাবার ঘর আছে, উনি অনেক দিন থেকে, শ্রীলা ম্যাডাম অনেক দিন থেকে আর কি, অনেক বছর ধরে আর কি বাবার জ্ঞান রয়েছে। তো ওনাদের বাড়িতে আর কি হচ্ছে সেটিংটা। তো সব মিলে আর কি তোমাদের দেখাবো বলে আমি আজকে সকালবেলা ব্লগটাকে শুরু করলাম। তো চলো দেখতে থাকো, যতটুকু পারবো শেয়ার করব, আর ভালো লাগলে অবশ্যই বলবো লাইক করো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো আর কথা বাড়াই না, স্নান টান করে রেডি হয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো বন্ধুরা, স্নান টান কমপ্লিট, রেডি হয়ে গেছে। দেখো, আমার আর কি সাদা ওড়না নেই বলে মা সাদা ওড়নাটা পরেছে, তার জন্য মাকে আর কি দিলাম। তো আমি এখন লাল দিয়ে পরে যাচ্ছি, তো সেই কারণে আর কি আমি পড়তে পারলাম না। দেখো টোটালি আর কি সাদা সাজতে পারলাম না। আর মাও রেডি, দেখো। আচ্ছা, আমি একটু মুখে চিনি দিয়ে যাই, কারণ স্নান করে না খেয়ে আর কি চলে যাবো। অন্ধকার এখানটা। তো জলটা কিনে না, চলো এবার বেরিয়ে পড়ি। ওখানে গিয়ে যতটুকু পারবো তোমাদেরকে আমি চেষ্টা কিন্তু করবো, কারণ যদি ভাট্টিতে বসে যায় তাহলে কিন্তু পুরোপুরি আমি করতে পারবো না, কারণ মেডিটেশনের সময় তার করা যাবে না। ফাঁকে ফাঁকে আমি ঠিক করার চেষ্টা করব। হয়েছে, অতটা লাগাতে লাগবে না। হাইটে যাবা? হ্যাঁ, এখান থেকে হাইটে যাই, এইখান থেকে এইখানে টোটোতে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তাহলে বেকার 20 টাকাটা দেওয়ার লাভ নেই, কারণ খুবই সামনে, ম্যাকনা স্কুলের পেছনে। তো চলো যাই। তো বন্ধুরা দেখো, আমরা প্রায় চলে এসেছি। এটা হচ্ছে এই যে রেল লাইনটা হচ্ছে মাঝখানে, তো ওই পাশে হচ্ছে ম্যাকনা স্কুল আর এই পাশে রাস্তাটা। তো রেল লাইন দিয়ে আর কি ভাগ হয়েছে জায়গাটা। তো দেখতেই পাচ্ছ, হয়তো ঠিক একটা বুঝতে পারবে না, কারণ গাছপালা দিয়ে না ঢাকা আছে। তো একদম গাছপালার সাথে আর কি লাগোয়া ম্যাকনা স্কুলটা। আর এইটা হচ্ছে এই যে কাউন্সিলরের বাড়িটা। তো দেখো এখানে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে, অনেকটা বড় জায়গা। তোমাদেরকে আমি একটু ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। সামনে তো এই যে বাবার ছবি লাগিয়ে রাখা হয়েছে। এই যেটা হচ্ছে ব্রহ্মাকুমারী রাজযোগ মেডিটেশন, এখানে ব্যানারটা টানিয়ে ফেলেছে। আর এদিকে হচ্ছে সমস্ত পতাকাগুলোকে টানিয়ে রেখেছে, খুব সুন্দর করে আয়োজনটা করেছে, দেখতে পাচ্ছ। আর ওদিকে দেখো, এখন আমি সামনে গিয়ে বসবো, ব্রহ্মা বাবার ছবি, আর ওদিকে হচ্ছে পরমপিতা শিব বাবার জ্যোতির্বিন্দুটা। তো খুব সুন্দর করে আয়োজন করেছে। তো এখন এসে বসলাম, তোমাদেরকে বাকিটাও দেখাচ্ছি। তোমাদেরকে আমি একটু বাইরে তো হচ্ছেই, আর উঠানে আর কি, উঠানটাই অত বড় বুঝতেই পারলে দেখে। আর এটা হচ্ছে বাবার ঘর,
ঘরটা একবার দেখায়, আমার খুব সুন্দর লাগলো। দেখো একবার পুরো রুমটা, হ্যাঁ আগে দেখাই। অনেকজন এখানে ক্লাস করতে পারবে, বিশাল বড় রুম। আমি নিজে দেখে অবাক হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। বিশাল বড় ঘর, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, মনটা দেখে ভরে গেল। দেখো বাবা, ব্রহ্মা বাবার ছবিটা কত বড়, আর ওইদিকে হচ্ছে সুপ্রিম লাইটটা, অর্থাৎ শিব বাবা। এত বড় পিকচারটা পুরো ওয়াল জুড়ে, দারুণ দারুণ। তা একবার এই জন্য তোমাদেরকে আমি ঘরটাকে দেখালাম এখানে এসে। এখনো শুরু হয়নি ঘরটি, এই জন্য আমি তোমাদের একটু দেখালাম ঘরটা, দারুণ। চলো, তো ব্যাস ইতিমধ্যে এই যে ইনি হচ্ছে কবির ভাইয়া, যিনি আর কি তারগুলো ঠিক করছে। উনি এখন নিজের সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ঠিক করে নিয়ে তারপর উনি বসবেন কথা বলতে। অ্যাকচুয়ালি ওনার ইউটিউবে চ্যানেল আছে বলে উনি আর কি ইউটিউবে ছাড়বে বলে এসব ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। কাছের থেকে এরকম এক মহান আত্মাদেরকে সামনে থেকে দেখতে পারবো, এটা একটা বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার। ওনার বয়স খুবই অল্প, খুব এত কম বয়সে উনি এতটা পুরুষার্থ করেছে, আর বাবার সন্তান হয়ে উঠেছে একদম সঠিকভাবে, সব শ্রীমতগুলো মানে ওনাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। कुछ ईश्वरीय मर्यादाएं होती हैं, क्यों, कारण क्या है इसका? अगर अब दुनिया में भी देखते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी फैक्ट्री कैसे चलती है, उसका आधार क्या होता है? भाई साहब, सारे भाई बैठे हैं, बहुत अनुभवी हैं, सब बिजनेसमैन हैं, कोई जॉब करता होगा। क्या होता है वहाँ पे, क्या इम्पोर्टेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? टाइमिंग। और दादा क्या इम्पोर्टेंट होता है? जवान और टाइमिंग। अपने टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और भी डिसिप्लिन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज, तो इसमें भी ये चीजें मैटर करती है। पर वहां तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो चलेगा या नहीं चलेगा? कारण क्या है? हम सब क्या बनने जा रहे हैं? मनुष्य से देवता। देवता मतलब परफेक्ट, उनमें कोई कमी नहीं होती, एकदम परफेक्ट। क्या आप में से किसी ने यह अनुभव किया है कि मुझे इस कार्य में माया बार बार आती है, मुझे बार बार परेशान कर रही है माया, मैं ये कार्य करने जाता हूं, बार बार विफल हो जाता हूं, मुझे इसमें बार बार माया आती है? माया तो समझते हो ना सभी, क्या होती है माया? विघ्न के रूप में आएगी, समस्याओं के रूप में आएगी। वो आपकी शारीरिक बीमारी भी हो सकती है ना, मन की कोई व्याधा हो सकती है, जैसे कि मानो आपको बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, और भी कई चीज हो सकती है, संबंध संपर्क में कीचड़बाजी हो जाती है। ऐसा होता है आपके साथ? तो इसका मतलब साफ है कि माया तब तक आती रहेगी जब तक आप उस कार्य को करते हुए पूरा अटेंशन नहीं देंगे। अगर उस कार्य को करते हुए आपने थोड़ी भी ढील रखी तो माया हमारे बाजू में खड़ी है चांटा मारने के लिए। माया तभी आती है, बार बार आएगी, जब जब हम उसमें कुछ ना कुछ अलबेलापन या ढीलपना कर रहे होंगे। चेक कर लीजिएगा, जहां हमें माया आ रही है, अगर आप चेक करेंगे आप पाएंगे कि जरूर वो श्रीमत प्रमाण नहीं हो रहा है। अब बड़ी बात ये होती है, कैसे पता करें वे श्रीमत है? विचार करिए, उसी कार्य को अगर स्वयं ब्रह्मा बाबा होते तो कैसे करते? क्लियर हुई बात? अगर स्वयं ब्रह्मा बाबा हो तो उस कार्य को कैसे करते? तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्या मैं उस कार्य को वैसे ही कर रहा हूं?
उसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा होते तो कैसे सोचते, कैसे बोलते और कैसे एक्शन में आते। अगर मुझे उत्तर मिलता है कि मैं वैसा नहीं कर रहा हूं तो समझ लीजिएगा मैं श्रीमत पर नहीं हूं, और नहीं हूं तो माया अपने आप ही चांटा मार देगी। क्लियर हुई ये बात? ओके। अगर आपको उत्तर मिल जाए कि ब्रह्मा बाबा होते तो वैसा ही करते तो समझ लीजिएगा आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन थे, क्या थे, उनकी तपस्याएं कैसी थी। तो जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उसको साथ के साथ प्रैक्टिकल में उतार लेना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि जब सुन रहे हैं तभी लोहा गर्म है। लोहा गर्म है तो हथौड़ी मार के देखिए उसकी शेप जरूर बदलेगी, लेकिन अगर हमने थोड़ा भी समय लगा दिया लोहा ठंडा हो जाएगा, उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको अपना ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसे जानने और सुनने के बाद आपके अंदर उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर बढ़ा था। वो क्या है? ब्रह्मा बाबा को जब ये पता चला कि उनका सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप है, संपूर्ण फरिश्ता रूप, तो ब्रह्मा बाबा की तपस्याएं कई गुना बढ़ गई। कैसे पता चला? ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले इस प्रकार पता चला, जब आबू में पहुंचे तो आबू में पहुंचने के बाद दादी गुलजार जी जब संदेश लेके जाया करती थी या संदेश लेने जाया करती थी सूक्ष्म वतन में, तो वहां पर दादी गुलजार जी ने कुछ देखा, और वो पहली बार देखा। दादी जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो समझ नहीं पाई मैंने क्या देखा, लेकिन कुछ अद्भुत देखा। दादी जी नीचे आए। दादी जी नीचे आके सभी दादियों और दीदियों को शेयर किया कि मैंने सूक्ष्म वतन में एक लाइट का कुछ देखा, एक आकृति देखी। तो ये बात ब्रह्मा बाबा और मम्मा के पास पहुंची, तो ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को बुलाया और पूछा, बच्ची क्या देखा, बताओ। तो दादी जी ने एक्सप्लेन किया, बाबा मैंने कुछ देखा, वो कॉटन जैसा लाइट का सा बहुत सुंदर था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया वो क्या था। तो बाबा ने कहा मम्मा से कि मम्मा बच्ची को एक तरफ ले जाओ और ले जाकर पता करो कि इसने क्या देखा। दादी जी ने मम्मा को भी बताने का प्रयास किया, मम्मा भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से जब दादी जी संदेश के लिए गए या ध्यान में जाते थे तो उनको फिर से वही चीज दिखाई दी बदल में। तो उन्होंने देखा और फिर से आके बोला और एक्सप्लेन किया, तो किसी को क्लियर नहीं हुआ। अब ब्रह्मा बाबा ने बोला, बच्ची एक काम करना, इस बार जब वो तुम्हें दिखाई देना तुम खुद ही उससे पूछना कि तुम कौन हो। दादी जी ने कहा ठीक है। तो दादी जी जब वतन में गई तो दादी जी को वो फिर से दिखाई दिया। तो दादी जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बोला कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हूं, संपूर्ण फरिश्ता रूप हूं मैं ब्रह्मा का। दादी जी नीचे आए, बाबा को आके बताया, हाँ बच्ची क्या देखा? बाबा ने दादी जी ने कहा, बाबा मैंने देखा, और उसने कहा कि वो आप ही का संपूर्ण फरिश्ता रूप है। तो बाबा ने कहा, बच्ची वो कैसा है और बताओ। बाबा दादी जी के तरफ ले गए, अच्छे से पूछा हिला हिला के, वो कैसा है पूरी डिटेलिंग ली। बाबा ने पूछा, बच्ची उसमें और मुझ में कितना फर्क है? तो दादी जी ने कहा, बाबा बहुत फर्क है, वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत आकर्षक है, वो तो कॉटन जैसा मुलायम है, बहुत ही मीठा है, आप उतने मीठे नहीं हो। बाबा ध्यान से सुनते रहे, लेकिन बाबा को समझ में आ गया।
कि मेरा फरिश्ता रूप ऊपर है। अब गांधीनगर दिल्ली की एक दीदी जी हैं, उनका नाम है कैलाश दीदी, आप जानते हो। उनका भी संदेशी का रोल रहा है यज्ञ में। तो वो आगे सुनाती है कि जब भी मैं मधुबन जाऊं, बाबा मुझे कहे बच्ची जाओ वतन में और देखकर आओ मुझ में और उस अव्यक्त ब्रह्मा में कितना फर्क है। दादी जी तुरंत जाती और आके बताती, बाबा अभी तो बहुत फर्क है। बाबा अपना पुरुषार्थ और तेज कर देते। अच्छा, दीदी जी बताती है, मैं फिर जाती जैसे ही मधुबन, बाबा फिर मुझे बुलाते, बच्ची जाओ देख कर आओ कितना फर्क है। तो मैं कहती, बाबा अभी फर्क है, थोड़ा है। लेकिन दीदी जी बताती हैं कि 69 में 3-4 महीने पहले की बात है, मैं यहाँ पे आई मधुबन में और बाबा ने मुझे तुरंत बुलाया, बच्ची जाओ वतन में जाओ और देख कर आओ इस ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में कितना फर्क है। तो दीदी जी देख कर आए और आकर बोले, बाबा इस ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में अब कोई फर्क ही नहीं रह गया है। तो पता है बाबा ने क्या बोला, बच्ची ये बात किसी को मत बता, किसी को मत बताना, क्योंकि सब, अब उन्होंने उस वक्त क्यों कहा होगा कि बच्ची किसी को मत बताना, क्योंकि बाबा जानते थे मैं संपूर्ण हो चला हूं। अब मेरा इस पंच तत्वों की देह को त्यागने का समय आ गया है, और अगर ये बात बच्चों को पता चल गई तो अपना कपड़ी बन जाएगी, है ना। बताती हैं दादियां अपने अनुभव में, आप उनकी अनुभव वाली बुक पढ़ेंगी। भाई मैं तो उस वक्त था नहीं, मैंने भी अनुभव में ही पढ़ा है और मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं। दादियां दीदियां अपने अनुभव में बताती हैं कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्णता के बिल्कुल करीब थे, यानी शरीर छोड़ने से, अव्यक्त होने से जस्ट 1-2 महीने या 10 दिन पहले तक की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहती हैं जब बाबा चलते थे ना धरती पे, ऐसा लगता था कि जमीन पे पांव नहीं, हवा में तैर रहे। कहती थी हमें अपनी आंखें अच्छे से मल के और खोल के देखना पड़ता था कि बाबा सचमुच जमीन पर है। दादियां बताती हैं कि बाबा अगर ऐसे चलता चलता किसी बच्चे को, बच्ची को ऐसे टच कर देता था तो कई दिन तक हमें वहां करंट सा अनुभव होता रहता था। दादियां बताती हैं कि खुली आंखों से आप ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर लाइट अनुभव कर सकते थे उस समय में, और ऐसा अनुभव होता था कि जैसे ये पंच तत्वों का पूरा देह ही कॉटन का बन गया हो, जैसे इसी से ही प्रकाश सा निकल रहा हो, जैसे इसमें से हड्डियां मांसपेशियां सब माइनस हो गई हो, कुछ नहीं केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा ही एक संपूर्ण फरिश्ता रूप हम सब का भी वतन में है। ये बात आप जानते हैं? कौन कौन ये बात जानता है? हम सब का फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन में है। कोई नहीं जानता, सीरियसली। देन आई एम लकी। मैं तो शुरू में जान गया था ये बात। बाबा ने अंत समय के लिए बोला है, अब मैं खुल के बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। बाबा ने अंत समय के लिए बोला है, खूने नाहक खेल होगा, नाहिक सब मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। ये सड़क भी दिख रही है आपको बाहर? इस सड़क पे मैं एक सीन आपको दिखा रहा हूं। इस सड़क पे बाहर अभी एक एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे इतने एरिया में 5-6 फीट के एरिया में खून खून ब्लड ब्लड पड़ा हो, ओके। वो सीन देख के माता कैसा लगेगा?
गर्दन उधर पड़ी है, धड़ इधर पड़ा है, ब्लड वहां फैला पड़ा है। कैसा लग रहा है देख के? ये सीन कैसा लगा? देखने के बाद अजीब लगेगा ना, हम में से किसी को भी लगेगा। सोचो, यहां से लेके वहां तक सड़क पे जहां देखो, अगर ब्लड ही ब्लड पड़ा हो तो, और लाशें ही लाशें पड़ी हो तो। चालू हो गया, दूसरा काउंट में तो हो ही रहा है। ये देखने की हिम्मत है। ये नजारा देखिए, ये अंत का नजारा। वो कहेंगे हाय मरा, बाबा की मुरली से, वो कहेंगे हाय मरा, आप कहेंगे वाह अपने घर गया। क्यों और कब कह पाएंगे हम ऐसा वाह अपने घर गया? पर हमारे मुंह से वाह क्यों निकलेगी? वो तो कह रहे हाय हाय गिरा, और हम कह रहे वाह अपने घर गया। हमारे मुंह से वाह कब निकलेगी? पता है कब निकलेगी? जब हम बिल्कुल अपने फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, अचल और अडोल। तब हमें बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर दिखाई देगी। कौन सी? कि वह अपने घर गया। मतलब क्या हुआ कि वो घर जाता आपको दिखाई देगा। और वह हमने क्यों कहा कि इस पुरानी देह, पुराने संसार और दुख दिलद्दर चिंता कुंठाएं से मुक्त हो गया, तो वहां तो निकलेगी ना हमारे मुंह से। वो कहेंगे हाय मरा, हमने तो वहां अपने घर गया। मिरुआ मौत, इसका मतलब समझते हैं आप? मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार का क्या मतलब है? नूर बोली में आता है। बोलो बोलो। मिरुआ मौत, मिरुआ कहते हैं, जो बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। मिरुआ कहते हैं मेंढक को। मिरुआ मौत, मेंढक की मौत, मल्लू का शिकार। मल्लूक का, मल्लू मतलब एक बच्चे का नाम, मल्लू का शिकार मतलब मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। जब मेंढक नहीं निकलते बारिश में, आपने देखा होगा बारिश पड़ रही, मेंढक उछलते हैं, बच्चे क्या करते हैं? उनको कंकड़ मारते हैं और खुश होते हैं, वो मेरा लगा, देखा तो मेरा लगा। और वहां वो बेचारे, उनकी तो मौत हो रही है और इसका मस्ती हो रही है, खेल रहा है। तो ये खेल एंड का है कि वो गए, उधर दुख हो रहा है, आप कहेंगे वह मुक्त हुआ। और सबसे बड़ी बात, हम जितने बड़े तपस्वी, जितने त्यागी मूर्त, जितनी वैराग्य वृत्ति, उतना ज्यादा हमारा संपूर्ण फरिश्ता रूप हमें खुद तो अनुभव होगा ही, उन्हें भी अनुभव होगा। और उसी प्रकाश से, उसी प्रकाश मार्ग से वो वापस जाएंगे। और जितने आपके प्रकाश मार्ग से आत्माएं वापस लौट रही होंगी, वो सब आपको बहुत 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 दुआएं देंगे, बहुत पुण्य लगेगा। उस समय पर हमारा जो एक पद है ना, ये तो पद है, खुशी है, किस नंबर पे आत्माएं आनी है, 700 करोड़ में किसका क्या नंबर फिक्स होगा, सब उस समय पर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो क्या करना पड़ेगा? सुन तो लिया, क्या करना पड़ेगा कि परिस्थिति विपरीत हो, हाहाकार मच रहा हो और हम स्टेबल हैं। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी हमने। आप घर में जाओ ना, छोटी छोटी बातों पे तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे तो हम रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगते हैं, है ना? कोई भी चीज थोड़ी सी हमारे अनुसार ना हो तो हमारा हाल बेहाल हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? आप थोड़ा सा पानी पी के, खांसी उठे ना जिसको, वो उठ के पानी पी के आओ और थोड़ा सा ऐसे घूम कर आओ बाहर। उसका कारण है आपस में आपको डिस्टर्बेंस भी होता है और खांसी रिकॉर्डिंग में ज्यादा आती है क्लास में। फिर इसे पता है आपकी लाखों आत्माएं खांसी सुनती रहेंगी यूट्यूब पर। तो जिसको भी खांसी आए
थोड़ा सा घूम के आइएगा, ठीक है? तो क्या बात कर रहे थे हम? तो क्या करें फिर इसके लिए कि परिस्थिति सामने हो और हमारी स्थिति ना हिले? रिहर्सल। जब हम मेडिटेट करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उस वक्त हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से दिए हुए मैसेजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि जब हम बाबा की याद में मस्त रहते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है। होता है नहीं होता? और जिसका नहीं होता उसको यही लगता रहेगा मेरा योग तो लगा ही नहीं है। होता है ऐसा कई बार? और जब वो शांत हो जाता है तो हम कैसा अनुभव करते हैं? हाँ मजा आ गया, बिल्कुल आनंद आ रहा है ना? होता है ऐसा नहीं होता? उस दौरान हमने अब से रोज 5 मिनट करना है। कई बार बैठ के भी नहीं, अब चलते फिरते करें। चलो वो बाद में बात करूंगा चलते फिरते की, पहले बैठ के करने की बात करता हूं। बैठे हैं, ज्यादा मत करना, 5 मिनट बहुत है रोज। करिए। क्या करेंगे? आंखों के सामने एक टीवी चला लो। क्या करो? ऐसे ऐसे ना, ऐसे स्क्रीन बना लिया करो। बन गई? स्क्रीन पर सामने देखो, सबसे पहले उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस वैभव को सामने लाओ जिसकी तरफ आपको आकर्षण है। राइट? उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी याद करके देखिए जो बहुत खुश रहता है, सबकी मदद करता है, बहुत रॉयल है। आपका चेहरा सुनने मात्र से खुश हो गया, हुआ नहीं हुआ? अब एक ऐसे व्यक्ति को याद करिए जो बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बात बात पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, धोखा देता है, चोरी करता है, बात बात पे मार पिटाई शुरू कर देता है, झगड़ा करता है। आप सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए? जैसे को याद कर रहे हैं, चेहरे रूपी टीवी पर यहां से मैं वैसे ही एक्सप्रेशंस देख पा रहा हूं। मतलब क्या है? चेहरे पे भाव क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मन के भाव बदल रहे हैं। मन के भाव क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मन इस वक्त, जब मैं बता रहा था, तो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा जो बहुत सुखी है, और फिर ऐसे से जुड़ा जो बहुत क्रोधी है। तो सोचो, क्षणिक मात्र से आप क्रोधी व्यक्ति से जुड़े तो आपके चेहरे के भाव बदल गए। और अगर हम पूरे दिन कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, अहंकारियों को याद करते रहे किसी ना किसी बहाने से, कैसे भी करके, ऐसे वैसे जैसे तैसे उनसे जुड़े रहे पूरे दिन, तो हमारे चेहरे क्या श्रृंगार का क्या होगा मुझे बताओ। हमारे चेहरे का श्रृंगार बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? हम कह रहे हैं हम भक्ति सबसे ज्यादा करते हैं, तो मतलब परमात्मा को सबसे ज्यादा याद करते हैं। तो परमात्मा को याद करने पर हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? ये कई बार ज्ञान मार्ग में भी हम करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी हम भक्ति करने लगते हैं। भक्ति तो छोड़ दो, भक्ति शब्द तो अच्छा है, नॉट बैड एट ऑल, इट्स गुड। भक्ति है ही नहीं, वो भक्ति है। तो यहाँ भी भक्ति होने लगती, भागूंगा 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 भागूंगा, ये भागो भागो, अब यहाँ से वहां भागो, वहां से यहाँ भागो। आप में ये कौन कौन सोच रहा है कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम अभी कभी खत्म हो और मैं भागूं? তো বন্ধুরা, আশা করি অনেকটাই আর কি পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে ওনার বক্তৃতাগুলো। আশা করি তোমাদেরও সবার খুব ভালো লেগেছে, তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো কারো যদি একটু বেশি ইন্টারেস্ট থাকে তো তোমরা ইউটিউবে গিয়ে বিকে কবির ভাইয়া তে সার্চ করে একটু দেখে নিও ওনার জীবনী সম্পর্কে। উনি আগে মডেলার ছিলেন, তারপর বাবার ঘরে এসেছেন। তো এত সুন্দর করে কথাগুলো বলেছে, তো খুব ভালো লাগলো।
তো যাই হোক, এতক্ষণ বক্তৃতা দিল, তারপরে এখন মেডিটেশন করে এখন আমরা প্রসাদ গ্রহণ করতে বসেছি। দেখো এদিকে বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে আমি বসেছি, মা পরে বসবে। তো এখন চলো প্রসাদ গ্রহণ করে নিই, তারপর তোমাদের সাথে পরে কথা হবে। তো ব্যাস বন্ধুরা, প্রসাদ গ্রহণ করা হয়ে গেছে। তো এদিকে এখন একটু দাঁড়িয়ে আমি বাচ্চাদের সাথে গল্প করছিলাম। তো মা পরে যাবে, আমি এখন চলে যাব, প্রায় 3:30টার মতো বাজে। তো চলো বাড়ি যাওয়া যাক। বন্ধুরা বাড়ি চলে এসেছি, এখন বাজে হচ্ছে 3:30, 3:36 বাজে। ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ, 3:30 বাজে। তো আবারও 5টা থেকে ভাট্টি হবে। তো এখন আর হলো না ওরকম করে, মানে হয়েছে, মানে ওই ঠিক ওই একরকম যে 1-2 ঘন্টা 3 ঘন্টার যে ভাট্টিটা হয় ওটা হয়নি। মেডিটেশন করিয়েছে, তারপরে অনেক ধরনের কথা বলেছে, তো ভিডিওর মধ্যে তোমরা দেখতেই পারবে। তো বাড়ি আসলাম, মা আসেনি, মা একটু কাজ করছে ওখানে, তাই জন্য আমি একা আসলাম। আমাকে আসতে হলো কারণ মানে মা তো আসবেই, আবার 5টাতে যাব। তো এদেরকে তো সত্যি বলতে গেলে পাওয়া যায় না, কারণ এদের দৃষ্টি নেওয়া, এদের সব কথাবার্তা, এদের চালচলন সব কিছুই আলাদা। ওনারা প্রচণ্ড পুরুষার্থ করে, সেই কারণে ওদের সমতুল্য আমরা কখনোই না। ওরা যেহেতু নিমিত্ত, ঘর সংসার ওদের নেই, তাই ওদের একটা ভাইব্রেশন পাওয়াটাও একটা, মানে ওদের সান্নিধ্যে যাওয়াটা একটা কপালের ব্যাপার। তো সেই কারণে ভাবলাম কি যেতাম নয় 5টা থেকে। তো ভাবলাম 7:30 যেহেতু পড়ানো আছে আমার, আর তো আসবে না, কবে দেখতে পাবো তারও নেই ঠিক। এত ইজিলি ওনাদেরকে আর পাওয়া যাবে না, সেই কারণে ভাবলাম 7:30 যেহেতু পড়ানো আছে, আবারও 5টা থেকে যাব, 5টা থেকে 7টা অবধি করে তারপরে আমি পড়াতে চলে যাব। তো তারপরেও তো কন্টিনিউয়াস হতে থাকবে, তো আমি কি করব, আর 2 ঘন্টা আমার এদিকেও ব্যালেন্স করতে হবে। এখন বাদ দিতেও পারবো না, কারণ স্টুডেন্টেরও এক্সাম চলে আসছে। তো সেই কারণে হলো না, মানে আর ওকে যে এক্সট্রা আমি ডেট বলবো তো সেটাও হবে না, কারণ ওর স্কুল থাকে, গান থাকে, বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র থাকে, সেই কারণে আমি আর ওকে বলতে পারবো না। তাই মানে হয় না, দুজনের টিচার এবং স্টুডেন্টেরও আর কি দুজনের আর কি মত থাকতে হবে, দুজনেরই ফাঁকা থাকতে হবে, তাহলেই হয়। আমি জানি ওর থাকবে না, সে কারণে বললেও লাভ নেই। মা বললো কালকে পড়িয়ে দেয়, আমি জানি হবে না, তো ছাড়ো বাদ দাও, 5টা থেকে 7টা অবধি করে এসে তারপর 7:30টাতে যাবো। তো ব্রহ্মভোজন খেলাম, ভালো লাগলো। খিচুড়ি ছিল, পায়েস ছিল, লুচি ছিল, বেশ মানে স্বাদ করে খেলাম আর কি, মজা লাগলো। মজা হয়েছে, মানে এরকম একটা দিন, একটা ফেস্টিভ্যাল লাগে সত্যি। উনি বলেছেন যে একটা ফেস্টিভ্যালের মতো উপভোগ করো, সত্যি মজা লাগে এরকম মাঝে মাঝে। আর বিকে শিবানী, তোমরা হয়তো অনেকেই ওনাকে ফলো করো, আমিও ওনাকে ফলো করি, জানি না ফলো করি কি, মাঝে মাঝে কষ্ট রাগ যদি হয় তো ওনাদের ফলো করলে একটু মোটিভেট হওয়া যায়, মনটাকে শান্ত করা যায়, সে কারণে আর কি ফলো করি। তো হয়তো তোমরা আর কি, আশা করি আমার চ্যানেলে যারা আর কি দেখো, আমার ভিডিও দেখো, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই 2-1 জন চিনবেই। ওনাকে চেনে না এমন কেউ নেই, তো ওনাকে প্রায়শই বেশিরভাগ মানুষই চেনে। তো বিকে শিবানীও আসার কথা বলতে আলিপুরদুয়ারে না, কোচবিহারে। তো এই কবির ভাইয়া আবার অবশ্য আজকে আলিপুরদুয়ারে, কালকে যেহেতু ছিল, আবার আগামীকাল কোচবিহার যাবে, তারপরে ধুবড়ি, মানে এই সব ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওই নর্থ সাইডটা আর একটু আসামে যাবে, এসব করে মানে উনি 20 দিনের জন্য ট্যুরে এসেছে। তো এইসব জায়গায়, কয়েকটা জায়গায় উনি ক্লাস করিয়ে তারপরে চলে যাবে আবারও ওই রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে। তো সে কারণে মিস তো করা যায় না বলো। তো বিকে শিবানীও যখন আসবে, আসার তো কথা, ওনাকে আনতে গেলে আরও অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। তো সেই কারণে জানি না, ওনাকে আমার কাছের থেকে দেখার খুব ইচ্ছা, খুবই। তো জানি না ওই ইচ্ছাটা কবে পূরণ হবে, আশা করি দেখতে পারবো সামনে থেকে। তো যদিও পারি তোমাদের সাথেও আমি শেয়ার করব, কথা চলছে, সে কারণে তোমাদেরকে বললাম। এদেরকে দেখা মানে বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার। যাই হোক, ভালো লাগে, এরা খুব পজিটিভ, হাইলি পজিটিভ আর কি। আমি একটা কথাই বলবো সবাইকে, যে এই ব্রহ্মকুমারীজে মাহাত্ম্যটা কেউ বোঝে না। আর বাবা অর্থাৎ শিব বাবা যদি না চায়, মানে না টানে, যদি বাবার মানে এইখানে না, মানে না আসলে বুঝতে পারবে না। তো আমি চাই সবাই তোমরা জ্ঞান নাও, এটা এখন অজানা কিছু নেই। আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উনিও কিন্তু এই জ্ঞানেই রয়েছে। তো আমিও চাই তোমরাও সবাই বাবার এই জ্ঞান নাও,
আশা করি তোমাদের যখন সময় আসবে তোমরাও ঠিক সঠিক জ্ঞানটা পাবে। আমি এই জন্যই কিছু কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো এটা আমাদের একটা সেবা, মানুষকে পৌঁছে দেওয়া, মানুষের কাছে একটু বলা, ওই বলাতেই যে যার আর কি ইন্টারেস্ট আছে তারা এসে ঠিকই ক্লাস করবে, বাবার জ্ঞান নেবে, বাবার সান্নিধ্যে আসবে, বাবার ছত্রছায়ার নিচে আসবে, বাবার আশীর্বাদ পাবে। তো আশা করি তোমরাও একদিন না একদিন ঠিক আসবে, আসতে সবাইকেই হবে আমি জানি। আজকে হয়তো ভিডিও দেখছো, বাট একদিন এই ভিডিওটাই তোমরা বলবে যে ঠিকই তো বলেছিলে, যে আসতে হবে, যেতে হবে বাবার কাছে একদিন। তো বন্ধুরা, তখন আমি মানে কি বলবো, মাঝখানে কথা বলতে বলতে আমি আর ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার ফোনে না একদমই চার্জ ছিল না, 5% ছিল, তাই ফট করে ফোনটা অফ হয়ে গেছিলো আর কি। বলতে গেলে 5% একদমই লো হয়ে গেছিলো 1%-এ, তাই ফোনটা অফ হয়ে যায়, আমি আর কিছু বলতে পারিনি। তো এখন দেখো বাজে 5টা, তো চলে এসেছি। এখন বাড়িটাকে দেখো খুব সুন্দর করে লাইটিং দিয়ে সাজিয়েছে, তো লোক আসা শুরু করে দিয়েছে। এখন যোগভাট্টি শুরু হবে, এখন আর ব্লগ করা যাবে না, সবাই এখন চলে এসেছে, আর উনিও আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত হয়ে পড়েছে আবারও। তো উনি এখন আমাদেরকে যোগ করাবে, অর্থাৎ মেডিটেশন করাবে। তো এখন আর ভিডিও করব না, এখন এখানেই আমি আজকে ভিডিওটাকে এন্ড করে দিচ্ছি। তো ভালো লেগে থাকলে বন্ধুরা তোমরা একটা লাইক করে দিও, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পারলে বন্ধুরা এই ভিডিওটাকে তোমরা শেয়ার করো। তো দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ওম শান্তি সবাইকে, টাটা।